जय विजय एवरीवन। शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपं ज्योति नमोस्तुते। दीपं ज्योति नमोस्तुते। दीपं ज्योति नमोस्तुते। इस श्लोक का अर्थ है, जो शुभ करता है, कल्याण करता है, आरोग्य रखता है, धन संपदा करता है और शत्रु बुद्धि का विनाश करता है, ऐसे दीप यानी दीपक की रोशनी को मैं नमन करता हूँ। Jai Hind students. So, how are you all? I hope you all are fine and enjoying at your home. Okay. So, today we are going to start chapter number 8. And our chapter number 8 is about internet. Okay. So, let's start. First, we will learn hard words. And these hard words are internet, email, communication, network, information, online, shopping, chatting, download, upload, social network, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, website, web browser, modem, uniform resource locator, internet service provider, surfing, offline, connection, hyperlink, Google Chrome. Okay, you have to write down all these important words in your computer notebook with neat and clean handwriting. Okay, let's start. And you have to learn this hard word also. Okay, now now we will start chapter. In this chapter we are going to learn about internet, uses of internet, requirements to connect to internet, common terms. Okay, now let's start. Computer can be used to exchange data and files. This can be done using secondary storage devices. But if files have to be frequently exchanged or the computers are not near to each other, then it becomes a tiring job. To overcome this trouble, the systems are connected to form a network. Computers connected to a network can share data and files efficiently without any delay. See, हम जब भी कंप्यूटर में काम करते हैं तो हमें डेटा शेयर करने की ज़रूरत पड़ती है। आज मैंने फॉर एग्जांपल हम लैब का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम लैब में कोई कंप्यूटर ए में बैठ के आज काम कर रहे हैं, कल हम कंप्यूटर बी में बैठ रहे हैं, तो हमें वो फाइल वहाँ पे वापस चाहिए। कंप्यूटर ए में जो फाइल हमने सेव की है वो सेम फाइल हमें कंप्यूटर बी में भी चाहिए नेक्स्ट डे। ओके, तो वो फाइल हमें कब मिलेगी? अगर हमारे कंप्यूटर एक दूसरे से नेटवर्क से कनेक्टेड है तो ही वो फाइल हमें कंप्यूटर बी में भी मिलेगी। बट दोनों कंप्यूटर के बीच में जो नेटवर्क नहीं है तो वो फाइल मिलेगी नहीं। सेम ऐसे ही हमें कुछ भी जरूरत पड़ती है, ज्यादा बड़े एरिया में अगर नेटवर्किंग करना हो तो हमें सारे कंप्यूटर्स के बीच में नेटवर्क करना पड़ता है।
तो ऐसे ही इंटरनेट जो है वो एक टाइप का नेटवर्क ही है। ओके, लेट्स स्टार्ट। Internet. Internet is a global network of millions of computers and computer networks all over the world. It allows us to access and share information over the network. The internet contains billions of websites to provide information, and these websites contain related web pages. Websites are located by using the website address or Universal Resource Locator URL, which is a unique address. सी, इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स। वो क्या है? जैसे मैंने आपको एक लैब का एग्जांपल दिया, तो लैब में कंप्यूटर जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं वो लोकल नेटवर्क होता है। बट जब ये सारे कंप्यूटर एक दूसरे से पूरे वर्ल्ड में कनेक्टेड होते हैं, ओके, तो ये क्या बन जाता है? ये इंटरनेट बन जाता है। तो क्या होता है? इंटरनेट का अगर डेफिनेशन लर्न करें तो इंटरनेट का डेफिनेशन ऐसा होता है कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। ओके, उसे इंटरनेशनल नेटवर्क भी कहा जाता है, क्योंकि ये नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड वाइड सारे कंप्यूटर्स का जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओके, और इन सबको कनेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? यूआरएल चाहिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल? यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। एक हमें यूआरएल चाहिए एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए, यानी कि लिंक चाहिए। लिंक से हम एक दूसरे को डेटा शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। Uses of Internet. The various uses of Internet have been discussed below. Email. Email is an online communication system. With email, you can send and receive electronic messages which work like writing letters. Your messages are delivered instantly to people anywhere in the world, unlike traditional mail that takes a lot of time. Email is now an essential communication tool in business. It is also excellent for keeping in touch with family and friends. सी, यूजेस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के बहुत सारे यूजेस है। फॉर एग्जांपल ईमेल, इंफॉर्मेशंस, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन चैटिंग, डाउनलोडिंग डेटा, अपलोडिंग डेटा, सोशल नेटवर्किंग साइट्स और फिर अदर यूज। ओके, तो अभी हम लर्न कर रहे हैं ईमेल। तो ईमेल क्या है? ईमेल इज एन ऑनलाइन कम्युनिकेशन सिस्टम। विथ ईमेल यू कैन सेंड एंड रिसीव। ईमेल से हम क्या कर सकते हैं? एक दूसरे को मैसेज सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, और मैसेज हम इंस्टेंटली डिलीवर हो जाता है। जैसे मैं यहाँ से मेरे कंप्यूटर में से कोई ईमेल सेंड करूंगी तो सामने वाले के कंप्यूटर पे एट अ टाइम उसको, अगर उसका भी इंटरनेट चालू है तो एट अ टाइम उसको भी वहां पे वो मिल जाएगा। इट इज अ वन टाइप ऑफ लेटर। ओके, The advantages of email as compared to telephone, fax, and postal services are: it is sent and delivered immediately if you are connected to internet. It is a free tool. You can send and receive messages free of cost. It can be sent anytime and anywhere in the world. सी, ईमेल के एडवांटेजेस क्या है? ईमेल के एडवांटेजेस फैक्स, टेलीफोन और जो हम करते हैं उससे थोड़े बेटर है। फॉर एग्जांपल, इट इज सेंड एंड डिलीवर इमीडिएटली इफ यू आर कनेक्टेड टू इंटरनेट। तुरंत ही अगर हम किसी को लेटर सेंड करते हैं पोस्ट में या कुरियर में, तो हम आज सेंड करेंगे तो उसको, अगर हमारे सेम कंट्री में है, आजू बाजू के लोकल एरिया में है, तो कल उसको नेक्स्ट डे मिल जाएगा। थोड़े दूर रहते हैं, आउट ऑफ स्टेट से, तो 2-3 डेज में मिल जाएगा। ओके, आउट ऑफ कंट्री है तो, वन वीक होता है, ऐसे ज्यादा टाइम लगता है। ओके, तो अगर वही लेटर हमें किसी को हम ईमेल कर देते हैं, तो जैसे ही उसके वहां पे इंटरनेट चालू होगा वो लेटर उसी टाइम वहां पे उसको मिल जाएगा। इट इज फ्री टूल। फ्री टूल मतलब कि इसमें कोई भी चार्जेस नहीं होता है, बस सिर्फ आपको इंटरनेट का रिचार्ज आपके पास होना चाहिए। अगर आपके इंटरनेट का रिचार्ज है तो आप सामने वाले को फ्री कॉस्ट में इंटरनेट में से ईमेल सेंड कर सकते हो, और आप कहीं से भी किसी भी टाइम किस दुनिया के किसी भी कोने में किसी को भी ईमेल आप फ्री कॉस्ट में सेंड कर सकते हो, कभी भी सेंड कर सकते हो। Information. Internet is a virtual treasure trove of information.
Any kind of information on any topic is available on the internet. The search engines on the internet can help you to find information on any subject that you need. Some commonly used search engines are Google, Yahoo, etc. There is a huge amount of information available on the internet on every subject. It may range from government law and services, market information, education, new ideas, technology, and much more. सी इंफॉर्मेशन मतलब इंफॉर्मेशन मीन्स कि अगर आपको इंटरनेट पर से कुछ भी नॉलेज चाहिए, कुछ भी जानकारी चाहिए, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो आपको वर्चुअल मोड में यहाँ पे मिल जाती है। हमें क्या करना होता है, इंटरनेट के अंदर सर्च इंजन होता है, जैसे कि गूगल है, याहू है, ये सारे सर्च इंजन है। नाउ तो वी आर यूजिंग ओनली गूगल। कुछ भी हमें काम होता है तो सिर्फ हम गूगल पे जाके सर्च कर लेते हैं। तो गूगल जो है इट इज अ कॉमनली यूज्ड सर्च इंजन। ऐसे सर्च इंजन होते हैं, वो है गूगल। ओके, इंटरनेट में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। किसी भी टॉपिक पे अगर आप सर्च करो तो उससे रिलेटेड आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट, डिफरेंट डिफरेंट आइडिया, डिफरेंट डिफरेंट डिटेल्स में मिल जाएगी। उसको पूरा का पूरा उस टॉपिक का हिस्ट्री, पूरा उससे रिलेटेड जो भी नॉलेज चाहिए सब हमें उस नॉलेज टॉपिक के ऊपर मिल जाएगी। Online shopping. You can buy and sell products all over the world through the internet. It is called online shopping. There are many online stores and sites that can be browsed to see the products and can be bought as well with your credit card. You need not leave your house and can do your shopping from the convenience of your home. Online chatting. Do your shopping from the convenience. सी ऑनलाइन शॉपिंग तो अभी हम सबको पता है ऑनलाइन शॉपिंग क्या होता है। हम सब लोग अभी मिंत्रा में से या तो फ्लिपकार्ट, अमेजोन को कितनी सारी ऐसी और भी वेबसाइट्स आती है जिसमें से हम कुछ ना कुछ ऑनलाइन परचेस करते रहते हैं। हमें कहीं जाना नहीं होता है, सिर्फ हमें हमारे मोबाइल में या कंप्यूटर में उसमें से जो भी हमें चाहिए वो सर्च करना है, उसका ऑर्डर दे देना है। और पेमेंट अगर हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो कार्ड से हमें पेमेंट भी कर देना होता है, तो वो आइटम हमारे घर पे पहुंच जाती है। अगर हमें पसंद नहीं आता है तो हम उसको वापस रिप्लेस भी कर सकते हैं, तो हमें हमारे कहीं जाने का टाइम बच जाता है। ओके, रिप्लेस करना है तो वापस से वो टाइम भी सेव हो जाता है और हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं सस्ते। अगर कोई चीज का प्राइस, अगर कोई मोबाइल आपको लेना है तो उसके प्राइस आप डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स में देख लो, तो आपको पता चल जाता है कि इस वेबसाइट में ये प्राइस है, इस वेबसाइट में ये प्राइस है। तो आप जहां से भी आपको सस्ता पड़े, इजी पड़े, वहां से आप शॉपिंग कर सकते हो। तो ऑनलाइन शॉपिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। Convenience of your home. Online chatting. There are many chat rooms on the web. These can be accessed to meet new people, make new friends, as well as to stay in touch with old friends. सी ऑनलाइन चैटिंग में क्या होता है, ऑनलाइन चैटिंग में एक तो हम ये सब कुछ व्हाट्सएप और वो सब कुछ कर रहे हैं, वो सब भी ऑनलाइन चैटिंग का ही पार्ट है। ओके, तो ऐसी और सारी, जैसे कि और सारी दूसरी वेबसाइट्स भी होती है जिसमें चैट रूम होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, आप वो ग्रुप ज्वाइन करके उसके अंदर चैटिंग कर सकते हो। ओके, तो ऐसे सारे ग्रुप्स भी होते हैं और जिसमें हम न्यू लोगों से मिलते हैं, न्यू लोगों को जानते हैं, न्यू फ्रेंड्स बना सकते हैं और ये सब करते हैं। बट आपको ये सब कुछ करना नहीं है, किसी भी चैट ग्रुप में इन्वॉल्व नहीं होना है। अननोन होते हैं लोग तो ओके, हमें ये ध्यान रखना है कि हमें किसी भी अननोन पर्सन के साथ वहां पे कांटेक्ट बनाने नहीं है। ओके, ये सिर्फ अभी आपको चैट, ऑनलाइन का चैटिंग हम जो अभी कर रहे हैं व्हाट्सएप में वही बराबर है। ओके, आपको दूसरे किसी भी ऑनलाइन ग्रुप में अभी ऐड होना नहीं है। हाँ, अगर आप किसी फ्रेंड्स को जानते हो पहले से तो आप उस ग्रुप में ऐड हो सकते हो। Friends. At times, these are used to spread awareness and exchange ideas pertaining to any specific cause. For example, there are science forums within a chat room where you can exchange your ideas on global warming, conservation of wildlife, etc. सी ऑनलाइन चैटिंग में क्या होता है, वहां पे जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप होते हैं, कोई हेल्थ से रिलेटेड होते हैं, स्टडी से रिलेटेड होते हैं, कि ऐसे बहुत सारे आर्ट से रिलेटेड होते हैं, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जिसे हम ज्वाइन
कर सकते हैं। बट मैं एक चीज आपको बताऊंगी, आप किसी भी ग्रुप में अगर ज्वाइन हो रहे हो तो आप कुछ भी अपनी पर्सनल डिटेल शेयर करोगे नहीं, ओके। अगर कुछ नॉलेज से रिलेटेड है तो आप अपना नॉलेज शेयर कर सकते हो, बट आपको कोई भी पर्सनल डिटेल कहीं पे भी ऑनलाइन शेयर करनी नहीं है, ये आपको एक खास ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक का हमने अभी लर्न किया है। नेक्स्ट जो है डाउनलोडिंग डेटा, अपलोडिंग डेटा एंड सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स, रिक्वायरमेंट टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, ये सब कुछ हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तब तक आप क्या करोगे, इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो है वो आप अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर लिख लोगे, ओके, और उसको लर्न भी कर लोगे, और यहाँ तक के सारे टॉपिक्स आप याद कर लोगे, अच्छे से रीड कर लोगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय। La la la.